Oh, wait. I forget to unmute you. Wait. Sorry, I forget to unmute you. Now you unmute yourself. Yes, Guruji. Pranams, Guruji. Blessings. Guruji, I have a couple of slides. So if you can give me Okay. permissions to share this. Wait. Yes, you can share the screen. Okay. Okay. Good morning and good evening, all the DH participants, and my namaskarams to Guruji. Thank you for giving me the opportunity to talk about the 11th house. I should be honest and in saying that I did the research very late yesterday evening. So hopefully the content that I'm presenting in this session would be is accurate and probably helpful for people. So let me start with the 11th house. As this is a North Indian chart, and as the 11th house is one below the 12th house, it signifies the air element, and it denotes the Aquarius house, for which the Saturn, the Lord is Shani, which is Saturn. So what are the significance? What is the significance of the 11th house? So it's Aquarius house, and Lord Saturn, and this is considered to be the most auspicious house in the chart, because it's considered the place of gains, labam, which is gains. Gains here means it's obviously it implies that it's a strong indicator of income, the person's income through earnings by their profession, and the profits resulting from the profits resulting from that profession, which also includes all the achievements in that profession. So the ninth house to the 12th house in the chart denotes the following, which is dharma, artha, kama, and moksha. So the 11th house here denotes kama, which is kama can be interpreted in two ways. In typical sense, it denotes, it means passion, but it also means desire. Desire for one's ambitions, desire for one's goals, or desire for one's wishes. So that's why the 11th house indicates aspirations, goals that that a person has with respect to their profession and career, and desires, wishes. Wishes and fulfillment, and it also denotes how the person will fulfill their desires that they have. It also denotes, and as I said, it denotes success in either the profession or business. And this 11th house is also associated with organizations which is typically large, or a community-based gathering of people. It denotes a feeling of um, emotions or friendship, um, and it represents the air element. The reason I'm saying that the 11th house denotes the aspirations and goals of profession is, if you look at the 10th house, the 10th house is all about profession, career achievements, profession and career. So the 11th house is about desires. So the 10th and the 11th house combines the desires, the ambitions in their career and profession, and how they perform to achieve their goals. Let's move on to the next slide. So the 11th house interpretation, we talked about this, which is gains from the career. The 10th house denotes career, fame, and achievement, and 11th house being next to the 10th house
denotes, how a person will, succeed, or how a person will profit from their, career and the profession. So I sort of, excuse me, I sort of interpreted this, and I'm not sure whether this is right or not. So I Very good. apologize. Sorry, Guruji. Go ahead. Go ahead. Very good. Go ahead. Yeah. So the profit, since 11th house represents profit, basically, we know that the 7th house is all about business, trade, and other things that you undertake. And fifth house is about creativity, intelligence, and one's, ability to be innovative. So the 5th house from the 7th house is obviously the 11th house. So applying intelligence, creativity, and also, in the business, in the areas of one's business or one's profession or trade, results in the profits. So which is the results from the 11th house. And younger brother, doing traveling abroad. Third house, as we all know, represents younger brother, and 8th house represents travel. So this 11th house, the 11th house in one's chart also represents if the younger brother, if younger sibling is going to be doing trips outside of their own country or not. And this house also signifies relationships. The secondary relationship, the primary relationship is elder brother. The secondary relationship is, wives or husbands of their children. As we know, 5th house denotes kids, and 7th house denotes spouse. So the 7th house, obviously from the 5th house, if you keep 7th house as a center and take the 5th house, 5th house as a center, and if you take the 7th house from the 5th house, it will denote the, the wives or the husbands of one's children. So I also wanted to, tell you my chart. I'm sorry that this is a South Indian chart. I was trying to get the North Indian chart late night, but I couldn't do justice here. So the South Indian chart is very similar to the North Indian chart. This is my the first house lagna is in has 12 number, so which is Jupiter. This also has my moon. So the 11th house becomes the Capricorn. So my 11th house has number 10, which is Capricorn, and the Lord for whom is Saturn. So now, since we have this as the base, I wanted to do some interpretations for my chart. So if you look at it, my 11th Lord, obviously my 11th Lord is sitting in my 10th house, which is Capricorn. The 11th Lord and the 10th Lord are both Saturn, right? So the 10th house, as we know, as we talked about, 10th house represents profession, career, and fame. 11th house represents organizations, a big organization or a community. So which implies that, I'm getting my primary earnings from working from doing my profession in an organization. Obviously, I work for Microsoft. So, and it also says that how well or how disciplined I would be doing my profession. So, and in my work, I'm pretty strict. I'm pretty professional. So, because both the 10th house and the 11th house both deal with professions and gains. I also thought that the 10th house deals with discipline and 11th house deals with friendship, as I said. So, and in my own case, I expect a lot of standards from my friends. I have pretty high moral standards, and I get frustrated when my friends or when the people whom I'm closely associated with don't have high standards as well. So 11th house also indicates 10th house. Sorry, 10th house also indicates actions and karma. 11th house indicates, as I said, community and organization. It also implies that I would be involved, in actions with respect to a community.
I don't know how many of you people know this, but I manage a temple, and I do a lot of community-related work in and around Seattle. So I don't know whether this is right, but this is what I have, Guruji. Very good. Just today is a very, can we close it? Oh, okay. Just we want to ask some question from Krishnanji. If you close your sharing, stop the sharing. First, give a big clap for him. No. And whatever he explained, and I request to Jayaji, can you explain in Hindi little bit? No. Yes, ना. देखिए अब जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको भी थोड़ा वो जयाजी बताएंगी आपको हिंदी में. Excuse me. Om Ganeshaya Namaha, Shri Gurubhyo Namaha. So as Krishnanji, so it's a lot of content, and he was presenting the screen. I will also try my best to do justice. So okay. So Krishnanji keh rahe hain Jayaji, if you want, I can reshare my slides. Do you want that? When it comes to that, I will ask. The last but one I need, the rest I have the notes. I will ask. Thank you for it. Yeah. So वो कह रहे हैं कि वो कल रात वो नए हैं इसमें और कल रात शुरू किए प्रिपेयर करने के लिए, तो उनका वो इतना जस्टिस नहीं कर पाए क्योंकि कल शाम ही उन्होंने प्रिपरेशन किया. अगर इसमें कुछ Who says the justice नहीं कर पाए? चलो लेट कंटिन्यू. Okay. So वो कह रहे हैं कि अगर कुछ भूल हो तो उसमें this one, if there's any mistake in that, he has to forgive, and he thanks वो गुरुजी को धन्यवाद दे रहे हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटी दिए हैं. तो और वो कह रहे हैं कि ये हमारी 11वां घर के बारे में आज उन्होंने बात की. ये 11वां घर रिप्रेजेंट्स, तत्व क्या रिप्रेजेंट करता है? हवा, एयर. ये कुंभ राशि है और इसका शनि कुंभ राशि है और इसका लॉर्ड भगवान शनि है. ये मोस्ट ऑस्पिशियस घर माना जाता है और ये घर है आप हमारी लाभ की और गेन क्या होती है हमारी, जैसे सर्विस क्लास पीपल, हमारी इनकम से होती है गेन, और प्रॉफिट से जो आती है वो है गेन्स, और हमारी अचीवमेंट्स जो हमने अचीव किया है वर्क में, वो भी हमारे लिए गेन्स होती हैं. और ये 9 से 12वें घर तक वो धर्म 9वें घर धर्म, 10वें घर अर्थ, एंड 11वें घर कामा और डिजायर्स, जैसे गुरुजी ने भी कहा और कृष्ण जी भी कह रहे हैं कि वो हमारी डिजायर्स हैं. और 12वें घर मोक्ष की है. 11वां घर हमारी एस्पिरेशंस, गोल्स जो हमारी हमने जो सेट किए हैं गोल, हमारी जो इच्छाएं हैं, उस सबकी रिप्रेजेंट करती है. और बोल रहे हैं कि इट ऑल्सो 11वें घर ऑल्सो इट रिप्रेजेंट्स बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और फ्रेंडशिप, दोस्ती, वो सब का रिप्रेजेंटेशन है. और वो कह रहे हैं कि 11वां घर बहुत करीब है, 10वें घर से 11वें घर बहुत करीब है, जस्ट नेक्स्ट है. तो उसका मतलब इंटर रिलेशन क्या है? हमारी 10वें घर प्रोफेशन की होती है, तो वो क्या कह रहे हैं कि प्रोफेशन से जो हमें लाभ मिलती है वो 11वें घर है. और उसके साथ ये भी वो बोल रहे हैं कि हमारी बिजनेस से 7वां घर बिजनेस पार्टनरशिप वो भी रिप्रेजेंट करती है. और उधर से ये 5वां घर है, 7, 8, 9, 10, 11. तो ये क्रिएटिविटी को भी, हमारी 5वें घर क्या होती है? क्रिएटिविटी होती है, उसका भी वो रिप्रेजेंट करता है. और 11वें घर हमारी 7वें घर से ये हमारे यंगर ब्रदर की फॉरेन ट्रैवल भी रिप्रेजेंट करती है. 11वां घर हमारे छोटे भाई और बहन की ट्रैवलिंग की भी सिग्निफिकेंस देती है, क्योंकि हमारे चार्ट में हमारे छोटी बहन भाई 3रा घर है, उधर से 8वां घर फॉरेन ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है. सो 3 से हम 8 गिने तो वो 11 आती है. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Did I get that right? Did you say it's 8th house from 3rd house? बोल बेटा, तू तो बोल.
गल बोल के बोल। ओके ओके एंड देन रिलेशनशिप में वो बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे 5वें घर है, अगर हमारी बच्चों की स्पाउस देखना है, उनकी पति या पत्नी देखनी है, उधर से हम 7 गिने तो 11वें घर है, तो हम वो उस तरह की इंटर रिलेशनशिप को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। और ये खुद उनके चार्ट वो दिखाए जो साउथ इंडियन स्टाइल में है, जो रिप्रेजेंटेशन वाज इन द साउथ इंडियन स्टाइल, और वो कह रहे हैं कि बिकॉज 11th हाउस रिप्रेजेंट्स लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, और इनकी इनकम, उनके खुद का इनकम कहां से आ रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से आ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट इतना लार्ज है, तो दैट्स हाउ इट्स डिस्टाइंड इन हिज हॉरोस्कोप। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि 11वें घर हमारी फ्रेंडशिप, दोस्ती या कम्युनिटी, हम जो सर्विस कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो सियाटल में बहुत सारे वॉलंटियर वर्क करते हैं, और जैसे हम सबको आप पता है कि शिरडी साईं बाबा के मंदिर की टेंपल वो ही रन करते हैं इधर पूरा। सो ही इज एसोसिएटेड विद कम्युनिटी एंड अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एविडेंट फ्रॉम हिज चार्ट। आई थिंक very good, very good, yeah, very good. Give a clap for Jaya. You just listen, these are the new pearl in the astrology. ये बिल्कुल नए मोती हैं एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण जी ने जो सुन के करा, उनने तैयारी करी। जय जी ने भी कितनी ब्यूटीफुली करके 5 to 7, these are the all new pearl. हमें शाबाशी देना चाहिए हमको भी। जय जी, कृष्ण जी, इट्स वेरी गुड। और ये जो आप ज्ञान सीखेंगे, वॉट एवर नॉलेज यू विल लर्न, माय गॉड, यू विल इंटरप्रेट बाय हाउ ब्यूटीफुली कृष्ण जी ने अपनी पत्रिका बताई हमको, और अपनी पत्रिका बताकर ये कहा कि भाई मेरा 11th का लॉर्ड 10th पे बैठा है, तो मेरा इंटरप्रेशन कैसा करा। अब हम आते हैं, और ब्यूटीफुली हिंदी में बताया, अब हम आते हैं इसको कंक्लूड करें। तो हमने जैसे आपको कहा पहले कि हम अब अधिकांश समय कहते हैं भगवान करे आप जो चाहते हैं आपको मिले, है ना। अब आपकी इच्छाएं, आपकी पत्नी की इच्छा क्या है मुझे बताओ। आपकी पत्नी की इच्छा है कि मेरे बच्चे सही रहे, मेरे खुश रहे। आपका भी 5th हाउस है, आपकी भी इच्छा है कि मेरे बच्चे खुश रहें। तो जस्ट 5th हाउस से अपोजिट 11th हाउस, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जस्ट सी द कनेक्शन, हाउ मच आपको खुश, बिकॉज वी आर लिविंग इन द इंडिया। हम एक पारिवारिक जीवन जी रहे, तो मैं पारिवारिक लोगों से वो संदेश दे रहा हूं, हमारी खुशी कब मिलेगी? मेरे पास तो ठीक पैसा आ गया पेंशन, मेरा बच्चा सफल होगा जब। तो इंसान एक समय तक अपने लिए जीता है, और एक समय के बाद वो अपनों के लिए जीता है। उसकी इच्छाएं अपनों की खुशी में होती है। तो अपनों की खुशी किसमें? द 5th रूम। और पत्नी का कमरा जैसे बताया जाए कृष्ण जी ने, ये भी कमरा 7th रूम है। पत्नी की खुशी सबसे पहले क्या होगी? पत्नी का बच्चा क्या है कि मेरे बच्चे खुश रहे, यहां से भी 5th है वो। तो ये कहीं इस प्रकार से हम उसको इंटरकनेक्टेड कर सकते हैं। और आप देखिए, आपका 2nd रूम इनकम का है, ठीक है। आपकी 2nd रूम इनकम कहां आएगी? जब आपकी कनेक्शन आपका प्रोफेशनल लाइफ से होगा। तो आप ये देखिए, 2nd हाउस की का 10th हाउस है ये। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो फ्रॉम 2nd is 11th. हेलो, यस, आर यू गेटिंग मी? सो कई चीजें ऐसी हैं, इसको आप खुद ही इंटरकनेक्टेड कर सकते हैं, हाउ ब्यूटीफुली कृष्ण जी ने करा। तो इसके लिए कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, आप खुद ही देखिए, यार मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती, अच्छा मेरा, तो आप इंटरप्रिटेशन खुद करें। और उसके बाद जब हम प्रिडिक्शन के दौर में जाएंगे, तब आप वेल मैच्योर हो चुके होंगे कि इंटरप्रिटेशन वाली बात में जब आएंगे, कि अगर जैसा कि कृष्ण जी ने बताया कि 10th लॉर्ड 11th लॉर्ड 10th में है, तो मेरी कम्युनिटी के पीछे काम करना, ये सब हम आपको डिटेल में बताएंगे। अभी तो ये सेशन हमारा लेने का भाव सिर्फ है कि आप अपने रूम्स को समझ जाएं। कि 11वां कमरा आपकी इच्छाओं का है, 11वां कमरा आपके बड़े भाइयों का है, और 11वां कमरा आपकी जैसे कि जो भी शरीर के पार्ट मिले, तो आपकी नीज से लेकर आपके जो पंजे तक का एरिया है, जो एकदम यूज दे सकता है, कभी दिक्कत जो बेचारा पिंडली वाला एरिया, वह 11वां कमरा रहता है। ये विष्णु स्थान माने, यही स्थान दबाने से अगर पत्नी
अगर पति की ये स्थान दबाए, ये हो गया 11वां कमरा। तो वो ऑटोमेटिकली सुख संपत्ति घर में आएगी। हम यह रेमेडियो को छोड़ छोड़ के हम बाहर किसी दूसरी रेमेडी में लगे हुए, लेकिन पहले आप अपने खुद की घर की रेमेडी करो। दैट्स व्हाई हमसे हील योर एस्ट्रो चार्ट बाय योरसेल्फ ओन। अपना खुद का एस्ट्रो चार्ट आप हील करें अपने आप। तो अपने आप से मेरा बोलने का मकसद ये है कि मेरा बोलने का मकसद आपको यह है कि अपना चार्ट कि आप भी अवलोकन उसका करें, आप भी अवलोकन उस प्रकार से करें, अपना चार्ट खुद देखें, ताकि हम जब 17 तारीख से हम इंटरप्रेशन का राउंड लेंगे तब हम एक एक की पत्रिका देख देख कर ही हम जीत जाएंगे। हमें इतना आत्मविश्वास क्यों है? क्योंकि मुझे में आपकी लगन पे विश्वास है। आप जान चुके होंगे, अगर थोड़ा बहुत आप भूल भी गए चलेगा, हम रिवाइज वापस कर लेंगे। तो हम इसी प्रकार 12 हॉरोस्कोप अलग अलग लगने के लेंगे, 12 आपके बीच में से लोगों के भी लेंगे, वह देखकर आप इंटरप्रेशन करेंगे। भाई इसके घर में देखिए 4th हाउस में राहु है, तो क्या होना चाहिए राहु का इम्पैक्ट, ये हम सब डिस्कस करेंगे एंड वो फाइनली हम उसे बात करेंगे। अब कल हमारा 12th रूम है। अब 11वां कमरा, जिस प्रकार जितनी बातें की गई कि आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान है, ये है, हम इस भाव से कहीं भी कमरे को नहीं पूछेंगे कि ये कमरा हमारी इच्छा पूर्ति का, तो उसको एक्टिव करो। एक्टिव करने वाला काम ऑटोमेटिकली आप खुद ही करवा रहे हैं, ऊपर वाला करवा रहा है, जैसा कि कृष्ण जी ने बताया। तो वो ऊपर वाला तैयारी है, वो उसके अंदर थोड़ी सी आपको एक कैटालिसिस का काम करना है। कैटालिसिस में उत्प्रेरक का काम, कि उसकी क्रिया को बढ़ा भी सकते हैं आप, वो घटा भी सकते हैं। बस अभी आपको मैंने एक मोक्ष की बात कही थी। देखिए 11वां कमरा करके 12वां कमरा मोक्ष हो गया, 12वां कमरा सीधा पैर। अब मैंने आपको मोक्ष में एक बात कही थी, अगर याद हो आपको तो, कि सांसें चलती रहे, सांसें इच्छाएं जिंदा रहे और सांसें खत्म हो जाए। इफ योर डिजायर्स अलाइव एंड योर ब्रेथ स्टॉप, इट्स कॉल्ड डेथ, इट्स कॉल्ड डेथ। अंडरस्टैंड? अगर आपकी डिजायर्स अलाइव है, अरे मेरा ये हो जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरे पोते को हो जाए, मेरा बच्चा विदेश में सेटल हो जाए, और इस बीच में अगर आपकी श्वास रुक जाती है, दिस कॉल्ड डेथ। और व्हेन योर डिजायर्स फिनिश, कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस जगत में रहना, जैसा रख रहा वैसा रख रहा हूं, अगर आपकी इच्छाएं खत्म हो जाए और श्वासें चलती रहे, इसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष मतलब बाहर के संभाव में आ गए, यू कम इन द सेम भाव। संभाव मीन्स कोई सुख हो, कोई दुख हो, कोई कुछ भी बोले, कोई बोले, तो आप जीते जी भी मोक्ष में जा सकते हैं, ऐसा नहीं जाने पे। पर हम ये सोचते हैं मरने के बाद, अरे मरने के बाद किसने देखा? आपको तो मालूम ही नहीं कि आपका मोक्ष होगा, कि आप एक जन्म में लोगे, किस जन्म में लोगे, मालूम। अरे हम जीते जी मोक्ष पैदा क्यों ना करें? आप इच्छाएं रखो, और ऊपर वाले को अगर आपको देना है आपके कर्मों के अनुसार, तो वो आगे बुला के चल के देगा आपको। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि अपने जीवन को निष्क्रिय करो, नहीं, बस वही भगवत गीता पे आता हूं मैं। भगवत गीता में कहा कि तू कर्म कर, कर्म की इच्छा का फल का परित्याग कर, कर्म मेरे ऊपर छोड़ उसके फल को। यस, इट इज ए बेस्ट फ्रॉम द भगवत गीता। तो अगर ये भगवत गीता की बात को फॉलो कर लिया, तो आपकी तो जीते जी आपको मोक्ष है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना बच्चा गिर जाए, बच्चा बीमार पड़ जाए तो हमको दुख नहीं होगा, दुख होगा, लेकिन वह हम ये जान लेंगे कि अस्थाई है, हम खुद अस्थाई है, पीड़ा भी अस्थाई है, कुछ समय तक का है। कभी कभी पीड़ा है, जैसे ये अर्चना लेके बैठती बच्चे को, भाई को, कभी कभी कोई बच्चा कभी घर में डिसेबल हो जाता तो लॉन्ग लाइफ चलता है, तो वो उनके कर्मास है, ड्यूटीज है, कि भाई आपको भी किसने लेके चला था, तो ये आपकी ड्यूटी है, अभी आप रीपे करें।
तो अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि यार मेरे को तकलीफ है, मेरे को ही क्यों मिला, तो इट इज जस्ट नथिंग एट ऑल। किसी को ना भगवान को आपसे प्यार है ना आपसे नफरत है, वह तो वही करता है जो आप उसको देते हो। आप अगर शराब की दुकान पे जाओगे और पैसे दोगे तो शराब की दुकान पर वो शराब की बोतल ही देगा, और मंदिर के बाहर दुकान में अगर भगवान के लिए पुष्प के लिए पैसे दोगे तो उसको बोलना नहीं पड़ेगा आपको कि पुष्प चाहिए, वो पुष्प ही देगा। तो इज ऑल अबाउट आवर एक्शन। आप सहमत है मेरी बात से? भाई मैं अगर जाकर किसी दुकान में जाऊंगा तो जिसकी दुकान में वही मिलेगा, तो मैं मेरी सोच में वो चीज रख लूं। मुझे मान लो दवाई की दुकान पे गया, दवाई वाला दवाई देगा, दवाई तो दे नहीं सकता, तो किस दुकान पे जाना है किस दुकान पे नहीं जाना, इसका फैसला आपके विवेक को करना है, आपके चैतन्यता को करना है। मेरे को आपके बैंक होंगे, लॉकर होंगे, आपके एफडीज होंगी, अकाउंट होंगे, अरे सबसे बड़ी एफडी की मेरे को इसमें क्या रखना और क्या नहीं रखना, इट्स द बिगेस्ट एफडी ऑफ द वर्ल्ड। दिमाग की एफडी, यहां पर जो भी रखना आपको, यहां जो रखोगे वो आपका इंटरेस्ट देगा। हम बता रहा हूं, भगवान भी किसी चीज को वो नहीं करता। अगर अच्छी चीजें रखोगे तो अच्छी चीज का ब्याज मिलेगा, और अगर बुरी चीजों का मिलेगा तो बुरी चीज तो बिल्कुल मल्टीपल में मिलेगा ब्याज आपको। अब मैं दिमाग के अंदर कैरी करके चलूं फर्स्ट रूम में कचरा, इसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, मेरे को ये कर दिया, ये कर दिया, मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, ये कचरा सब भर के रखूं तो मैं कहां तक पहुंचूंगा? 11वें कमरे तक। मैं बीच में उलझ जाऊंगा। तो एस्ट्रोलॉजी का जो पहिया है ये पूरे जीवन चक्र को बता रहा है। पहला आपका जन्म, दूसरा आपको मिला परिवार, सेंस ऑर्गन्स, तीसरा आपका मिला पुरुषार्थ, कुछ जैसे भी बोलते हैं, है ना, आपका चौथा आपका हृदय, है ना, चौथा आपका लंग्स, पांचवा आपका हार्ट, चौथा आपकी माँ, पांचवा आपके पिता, छोटा भाई बहन, माता पिता, छठे बड़े, तो धीरे धीरे इसी क्रम में बढ़ेगा। शरीर के पार्ट बात करो तो भी करेगा, लेकिन इसमें एक चीज जो विशेष बोलने वाली मेरी तरफ से कि आपकी इच्छाएं, देखिए एक बात बताइए, मेरे हाथ पैर खराब है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चलने में मुझे दिक्कत है, आई कैन थिंक कि मैं 100 मीटर की दौड़ दूंगा, जीत जाऊंगा, यस, मैं कभी सोच सकता हूं ऐसा? ये भगवान ने बोला है तू सोच, तू जीत के बताएगा। ये उसका उदाहरण है बेशंद्री पाल। वो क्या नाम था उस लड़की का जिसके पैर कट गए थे, उसके बाद भी उसने एवरेस्ट पे चैंपियन किया, व्हाट्स हर नेम, आर यू रिमेंबर इट? हर नेम आई थिंक बेशंद्री पाल, या वो क्या नाम था उनका। उस लड़की के साथ में चलती ट्रेन में उसको बाहर फेंक दिया, ये वेरी वेल नोन, आई लिटिल बिट कंफ्यूज द नेम। ट्रेन में उसके पैर कट गया, पैर कट गया उसका, उसने बोला नहीं मैं तो, मेरे को जमाना बोलता है विकलांग, नहीं मैं तो एवरेस्ट। वो डिसेबल लेडी का पैर कट गया है, उसके बाद उसके जज्बे में इतनी ताकत थी कि अपनी विकलांगता को सकलांगता बनाकर उसने एवरेस्ट तक पार कर गया, जो कि 2 हाथ 2 पैर वाला नहीं कर पाता है। अरुणधति राय, अरुणधति राय, you google it, you come to know about her, yes, कौन, anybody remember it? गीता आपको नाम याद है किसी का? अच्छा बसु ने बता दिया, बसु, am I right in name? Yes Guruji, yes Guruji. Arundhati Rai, she did after cutting her leg, उसके बाद जज्बा आपका क्या, आप क्या चाहते हो, बस ये जज्बा अगर वो नहीं रखा होता तो विकलांग बन के वो बैठी रहती घर में, लोग दया करते, लोग वो करते। तो कहां पर दया करना, कहां पर दया नहीं करना, ये भी फैसला करना। अपने ऊपर तो दया करना ही नहीं। मेरा भी जीवन में उद्बोधन मुझे मिला, वह लोग हमारे कॉलोनी में व्यक्ति रहता है अग्निहोत्री, वो गूगल करिए वो भी मिलेगा, उसका एक हाथ पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक हाथ, वो उसके लिए स्पेशल लाइसेंस बनाया गाड़ी का, ही वेरी इजी कैन ड्राइव द कार विद द वन लेग। उसके ये दोनों पोर्शन कटे हुए हैं, ये दोनों, आप गूगल करिए अग्निहोत्री डिसेबल, पता लग जाएगा। तो वो हाउ इट यूज द फॉर टेलीफोन स्टीयरिंग के लिए उसको बना के रखा, बांध के गाड़ी चलाता है, ही गॉट ए ड्राइविंग लाइसेंस। क्या हो गया ऐसा, क्यों?
वह भी सोच के बैठ जाता कि मैं तो डिसेबल हूं। अरे अब जब आप खुद बीमार रहते हैं, खुद विकलांग रहते हैं, तो नहीं हिम्मत हारना। हमारे घर का कोई बच्चा बीमार है या पत्नी का तबीयत ठीक नहीं चल रही है, माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, काय को लोड लेना यार। यस, अपना जज्बा ऊपर रखो। ये 11वें कमरे से मैं इच्छाओं पे मैं इसलिए आ रहा हूं। आप, मैं बोलता हूं कि कई बार आपको आंखें बंद करके कि आप जो चाहते हो आप मांगो। आप बोलो कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे, दीज आर नॉट डिजायर्स। आपके साथ उसका भाग्य भी जुड़ा हुआ है। कहने को आपका बच्चा है वो, कहने को आपका खून है, लेकिन बाकी सांसें तो ऊपर वाला चला रहा है उसकी। जिस प्रकार मैं आपको किचन बताता हूँ, चाबी का छल्ला, चाबी के छल्ले में कहने को एक परिवार है, लेकिन हर चाबी अलग अलग है। आप जैसा चाहते हो बच्चा बने, वो जाके कुछ और ही बनता है, उसकी डिजायर कुछ और ही निकलती है। कहने को परिवार, जिस प्रकार फूल रहता है, माली ध्यान रखता है, उसी प्रकार आपने बच्चे का ध्यान रखा, वो निकल गया। तो ज्यादा अटैचमेंट भी अच्छा नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप डिटेच हो जाओ, बट एज ए साक्षी भाव से देखो कि भाई इसके होंगे, हम इसको और रिपेयर कैसे कर सकते हैं, इस पर ध्यान रखो। चिंता ना कर, चिंतन कर। चिंता ना कर, चिंतन कर। व्यथा ना कर, व्यवस्था कर। व्यथा ना कर, व्यवस्था कर। डोंट क्राई, लेट्स ट्राई। दीज आर सम वर्ड्स विच यू कैन मोटिवेट यू। मैं नहीं मानता हम लोगों के पास इतनी बड़ी कोई परेशानी या तनाव या परेशानी है कि जिसके बगैर हम जी नहीं सकते। लॉट ऑफ टाइम मैं 11वें कमरे की बात हो रही, अरे गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया, मेरी फादर की तबीयत ठीक नहीं। हाउ यू ओल्ड? शायद अपने ग्रुप में से किसी का फोन आया था मेरे पास, पापा को तो 86 की एज है। तो मैंने बेटा पापा को क्यों तेरा प्यार मोहब्बत में बांध रही? वो पापा कितना भाग्यशाली है तेरे को आशीर्वाद, शायद नेम इज, शी इज फ्रॉम कलकत्ता। तो मैंने उसको बोला कि भाई आपके पापा है, ठीक है, पापा की तबीयत, आपको सेवा करना है, यू जस्ट टेक हाउ मच यू कैन गिव, स्पेयर योर टाइम। उनको आप कितना समय दे सकती हो, क्योंकि ये स्थिति आ जाइए 5 साल बाद भी आएगी, 10 साल बाद भी आएगी, आना ही है ना उसको। लेकिन अपने प्यार मोहब्बत के पीछे ठीक करने के चक्कर में उनकी शरीर को पीड़ा मत दो। और डॉक्टर तो बैठे दानों के लगा के वेंटिलेटर लगाने को, आप क्या फॉलो डॉक्टर एडवाइस, जो भी डॉक्टर कह रहे, लेकिन उस चीज को हमारे दिमाग में कैद मत रखो, डिटेच करो। यस, तो हाउ मच यू कैन डिटेच योर डिजायर्स, योर नेक्स्ट गो इन द मोक्षा एंड कैरी योर डिजायर्स। मैं चाहूंगा मेरे जितने भी लोग यहाँ पर हैं उपस्थित, सभी लोग जो भी इच्छा चिंतन करें। ये मेरी इच्छा करने से पूर्ण होगा क्या? इच्छाओं में क्या है? अच्छा हो गया आपका गोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फुटबॉल प्लेयर है और फुटबॉल प्लेयर के बाद आपने अगर बाय चांस गोल बनाना अपोजिट पार्टी में, तो गोल पोस्ट होता है, उस पर जाना है, डिसाइड करिए अपना लक्ष्य, लेकिन अपनी सोच, अपने टाइम फुटबॉल के साथ रखें कि उस फुटबॉल को उस गोल पोस्ट तक लेके जाना है। मैं गोल पोस्ट देखते रहूंगा, गोल पोस्ट देखते रहूंगा, तो कैन नॉट मेक द गोल। तो माय प्रेजेंट टाइम इज माय फुटबॉल। आई हैव टू फिक्स माय गोल, देन आई हैव टू बी विद माय फुटबॉल, जो मेरा वर्तमान समय है। कई लोगों को देखता हूँ, अरे कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, दूसरों से मदद की उम्मीद। अरे भगवान ने आपको इसलिए भेजा है कि आप दूसरों की मदद कर सको। हाँ, ज्ञान की बात है, नॉलेज की बात, वो बात अलग है। कोई आज की तारीख में, मैं बड़े, मेरा व्यक्तिगत अनुभव 10 साल का है, कोई आदमी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक ऊपर वाले का इशारा नहीं हो। वो करेगा तो मेरे जैसा आदमी अटोरी कृष्णा गुरु जी बन के आपको ठीक कर देगा, या आप में से कोई वर्षा बन के मेरे जीवन को ठीक कर देंगे, या कृष्ण जी बन के मेरा काम कर देंगे। ये सब वेरी ब्यूटीफुली प्लान है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक चलचित्र होता है, चलचित्र आप देखते हैं, वही हीरो शाहरुख खान दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वही अमरीश पुरी पिक्चर आप देख लेते हैं, यू सॉ द मूवी, यू कम बैक, योर होल लाइफ इज जस्ट लाइक ए मूवी, इट्स ए ब्यूटीफुली प्लान, बट इट्स अप टू यू हाउ यू प्ले योर रोल। क्या आप शाहरुख खान बन के अच्छा रोल कर सकते हैं? या अमरीश पुरी भी अच्छा है, अमरीश पुरी दे प्लेइंग द रोल एज ए विलन। तो इस जीवन में भी आपको कई हीरो मिलेंगे, कई विलन मिलेंगे, कई आपके दुश्मन मिलेंगे, कई दोस्त मिलेंगे। इस जीवन को भी एक चलचित्र के भाग पे देखो। अगर चलचित्र के माफी, इफ यू सी योर लाइफ एज ए मूवी, ओ माय गॉड, यू एंजॉय योर मूवी, नंबर 1।
उसके बाद उसको मानोगे कि आप टेम्परेरी, और आपको कोई भी सुख और दुख आपके दिमाग में जगह ना बना पाएगा। मैं तो बोलता हूँ आपके प्लेजर को भी आप जगह मत दो। खुशी भी किसने दी? उसने दी ना, उसका ही चलो। मेरे दिमाग को खाली रखना मुझको। मेरा दिमाग खाली रहेगा इफ माय माइंड इन द प्रेजेंट, नॉट इन द पास्ट, नॉट इन द फ्यूचर, इफ आई एम इन द प्रेजेंट, माय गॉड, मेरा सब कुछ, आई एम गोइंग टुवर्ड द मोक्ष। मेरे आज मैं हूं, आपका आज का इंसिडेंट बताता हूं। आई थिंक वो है क्या कोई बेंगलोर से, रिंकू, आर यू हियर? रिंकू, रिंकू, I got a call from because when I went to the Bangalore, I went to the disabled ashram. So because they professionally they do it their own work, because they must be gotten my number. They make a call after 3 years because they are regularly making a call. It's not only they called up me. It's up to me which action I have to take it. बोले गुरुजी यहाँ पर वो है, हमारे को कुछ लगता है, unable to understand, थोड़ा बोल भी रही थी, इसके अंदर कुछ हमारे को उनको भोजन का क्या लगता है, ये लगता है। ठीक है, then I talk with the, उस वक्त मेरे मन में ये नहीं आया कि इसको दान नहीं देना है, मेरे को दे का क्या है, दान बराबर है। तो उनने, रिंकू ने बताया कि इनकी तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 2-3 जने बाहर तक के अंदर ऑर्गेनाइजेशन चलती है, बहुत फंड आता है इनको। Then I thought, मैंने कहा माय गॉड, आता है ना बहुत फंड, मेरे जैसे न जाने कितने लोगों को फोन किया उन्होंने। मैं कोई काम करूं तो ऐसी जगह काम करूं कि मेरे हाथों से सामान उसको जाए। यस, कोई भी काम, आपका खुद का घर एक एनजीओ होना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी छुड़ा के दान देके नहीं, योर होल हाउस, योर अर्निंग मस्ट बी एनजीओ। किसी को दिया, किसी को दान, उसको जो आप दोगे, दवाई दोगे, खाने का सामान दोगे, उसके चेहरे की खुशी डायरेक्ट एक गॉड के रूप में है। वो आप डिसेबल हो कि आप, सॉरी आप मैंने अन्य बोलो कोई सर्विस नहीं कर पाते हो, तो आपने किसी को भेज के करा ली, वो बात अलग, उसमें भी आपके कुछ पढ़ना कम हुए, लेकिन हुए साक्षात स्वयं। इसीलिए मैं कभी सिद्धांत में विश्वास नहीं रखता कि आप फंड भेज दो मुझको। मैं कभी कहा, इतने सालों से आपके साथ जुड़ा हूं, लेकिन मेरा प्रयास रहता है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी की कि आप स्वयं एक रुचि लेकर जाएं। हाउ मेनी थिंक अबाउट दैट कि मैं प्रिजन में जाऊंगा, प्लान करूंगा, प्रिजन में जाऊंगा, पूछूंगा रूप के अंदर से क्या होता है। इंडिया के लोग कितने लोग हैं यहाँ पर, कितने लोगों ने सोचा है? नहीं सोचा। कौन जाए, क्यों नहीं? आपने सोचा गीता? वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। हाँ, भारती जी ने सोचा, वर्षा जी ने सोचा, मीता ने सोचा, मानो। हाँ बोल गीता बेटा। हाँ जी, सोचा है गुरुजी। वेरी गुड, तो यू गो इट, आई विल लेट यू नो एवरीथिंग स्टेप्स। आप कहाँ पर? दिल्ली में है ना? दिल्ली में। हाँ, मैं आपको 3 जरूर का ग्रुप दे दूंगा, उनके साथ मिलकर। ओके, पहला काम है, कोई भी आपको दिल्ली के अंदर जाना है तो बाकी सुविधा में, आपको जेल का नंबर चाहिए मैं दूंगा, जेल के सुपरिटेंडेंट का नंबर चाहिए मैं दूंगा। वहां पर आपको कोई पैसे की जरूरत पड़ रही तो वहां पे 3-4 जने आपको दे दूंगा कि वो वॉलंटरी आप लोग मिलकर काम करो। यस, आपकी इच्छा, इसीलिए कहते हैं कि एक कदम आपका बढ़ेगा, 99 कदम ऊपर वाला भेजेगा। आपके मन में उठाया आपने हाथ, और हम लोग पीछे साथ में आपके, हम लोग भी नहीं, गीता को हुआ, गीता ने स्टेप लिया। कितना खुश हुआ मैं उस दिन। भारती ने आगे चल के बोला, गुरुजी मैं आपके साथ चलूंगी जेल में। वर्षा जी ने बोला मैं चलूंगी आपके साथ में। मीता जी वही बोलेंगे चलूंगी जेल में। इट इज ए मेन एनजीओ वर्क। हर एक इंसान अपने आप में एनजीओ होना चाहिए। और बाकी यू नो मस्ट बी अबाउट द एनजीओ वर्क। क्या होता है ये आप भी जानते हैं कि इतना पैसा आप दे दो, टैक्स बचाने के लिए लेंगे, और इतना पैसा हमको कैश दे दो। दिस इज ऑल्सो रनिंग, बट वी डोंट वांट टू सी दैट कंडीशन, बट वी वांट कि मुझे क्या करना, मुझे इस पे दिमाग लगाना। ओके, क्लियर? ओके, सो इट्स जस्ट चैरिटी, दैट्स व्हाई आई एम इलैबोरेटिंग द 11th रूम इज ऑन चैरिटी। तो चैरिटी कौन सी? ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जुड़ना, गुरु का परिवार, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कुछ ऐसा भी करूं कि मैं स्वयं, मेरा शरीर, मेरे 12 के 12 कमरे, उसमें एक्शन ले और वह जाकर किसी को खुश खुश लेके आए। यस, तो 11th रूम, आप बड़े भाइयों की सेवा करो, अच्छी बात है, क्यों हमें करना ही है। मैं ये बोलूं कि 11th रूम में बड़ा भाई है, यस नीलम वेट,
बड़ा भाई का तो बड़े नहीं, आपकी तो दायित्व ही है पूरा करना, बड़ों भाइयों का ध्यान रखना, इज्जत करना, मान सम्मान करना, सब चीजों की आपकी कड़ी से कड़ी बनी। और जो भी आपको काम अलॉट किए जाना है, मैं बोलता हूँ गुरु के काम का ध्यान रखना, 10th हाउस बढ़ेगा। ऐसा नहीं करना कि यार मैं गुरु जी का काम करूंगी तो मेरा प्रोफेशनल लाइफ बढ़ जाएगी। डोंट थिंक लाइक दिस, डोंट पुट अप माय कंडीशन एनीवेयर। अगर मैं 10 इमली के बीज रख लूंगी तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ, दीज आर ओनली लाइक ए कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक का काम करेगी, आपको एक अलग ऊर्जा देगी। और यहाँ की जो ऊर्जा मिली है, इस ऊर्जा को संचरित करके आपको वहां पहुंचानी। 11वां नंबर, हाँ माधवी या कौन हुआ, हाँ नीलम बेटा पूछना चाह रहा हूँ। अंकल जी, ऐसा क्यों होता है कि ना कोई कुछ करना चाहता है पर फैमिली की रेस्ट्रिक्शंस होती है? वेरी गुड, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। अब नीलम है, नीलम करना चाहती है, नीलम कुछ करना चाहती है, लेकिन कुछ आसपास के वातावरण ऐसे मिले कि वो नहीं कर पाती, कि भाई घर वाले अलाउ नहीं करते। तो इसको पहला काम क्या है, इसको सब मिला कि तेरे को बंदिश हो सकता है, ये पिछले जन्म में ऐसे परिवार में हो, किसी ने उसको रोक दिया हो यह करने में, इसने रोका हो उसको कि नहीं करना, तो आज ये फेस कर रही है। और बोलिए बेटा, बोल। बस गौशाला तक रेस्ट्रिक्शन है, गौशाला जा सकते हो और प्रिजन नहीं बेटा आपने अपनी कम्युनिटी में, तो मैं मान रहा हूँ यू रिस्पेक्ट, फर्स्ट फॉलो योर एडवाइस। अगर उसके बाद अपने को ऐसा लगता है कि कोई आपका परिचित है, उसको गेरे भैया कर देंगे, तो विश्वास है उस पर, देन यू कैन गो अहेड, राइट। अभी मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा, किसी ने कुछ किया तो मैं फिर आप लोग शुरू कर दोगे, मेरा मोटिव खत्म हो जाएगा जो करने का है, मेरा बोलने का। आप लोग स्वयं रुचि लो, भले दिल्ली की हो या चंडीगढ़ की हो, आप एक्शन लो। पूनम में तुमको चंडीगढ़ में 5 से 10 दिन दे दूंगा, जो आप लोग मिलकर निर्णय लोगे। यस, माधवी के लिए दुबई, कंचन तुम्हारा दुबई में पॉसिबल नहीं है क्योंकि विश्वास नहीं करते। सिद्धार्थ, आप एक्शन लो, आप मुझे कोई भी शहर में, भगवान की दया से 10 साल में इतना मैंने किया कि कोई से भी शहर में हुआ वो, मैं वहां 1-2 जने आपको दे दूंगा जो आपके साथ जुड़ के आपको कंट्रीब्यूट करके आपके साथ चले जाएंगे काम करने। वहां के जेलर से टाइमिंग मैं लूट के दूंगा। और बोलो, बस आप एक स्टेप बढ़ाओ, भगवान की दया से अच्छे काम में एक कदम बढ़ाते हैं। इफ यू टेक 1 स्टेप, 99 स्टेप टेकन बाय द गॉड। तो अपने जीवन को अपनी नजर से देखो, अपनी पीड़ाओं को देखो, अपने सुख को देखो, अपने दुख को देखो, और देन सी टुगेदर, ऑल टुगेदर एंड कंटिन्यू योर लाइफ। ये तो एस्ट्रोलॉजी का चार्ट आप पढ़ लोगे, राहु केतु सब हुए, ये सब नहीं, सब यहाँ पर बैठे हैं सब। मैं किसी को बोलता हूँ 3rd रूम में, क्यों गुरु जी मेरा भाई मुझे चीट तो नहीं करेगा? अब वो करना होगा तो करके जाएगा, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। हम बड़े खुश होते हैं, क्यों? आपका 3rd हाउस में राहु, आपको किसी ब्रदर चीट करेगा, और हाँ मेरा भगवान खुश हो, क्या क्या मिला आपको? व्हाट यू विल गेट इट, व्हाट यू गॉट? इफ एनी पास्ट इंसिडेंट इज सेड बाय द एस्ट्रोलॉजर, व्हाट यू गेटिंग, क्या मिला आपको? और हाँ, बस अपने रिश्तों को संभाल के रखो। कोई रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब भी आप आखिरी सांस लो वो व्यक्ति ये बोले कि यार ये साक्षात भगवान है सर, आपके जीवन में जितने लोग जुड़े हुए हैं आपसे, ये सभी साक्षात भगवान बन के आ रहे हैं। कोई पीड़ा दे रहा है, कोई असुर संपदा, देविक संपदा, जो गीता में हमने पढ़ा था, ये सब एक जैसा। आज थोड़ा नॉलेज ज्यादा हो गया मेरे को लग रहा है, बट एनीवे इट इज कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात निकली, कृष्ण जी ने किया तो मैंने आपको कहा। हाँ, कहीं ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना है तो यू कैन टॉक विद मी, किसी और से बात करो, भाई किससे क्या करें, हम करने कुछ करना चाहते हैं, यू कैन गो अहेड। अब 3 प्रकार की चीजें होती हैं, देखिए चैरिटी में 3 प्रकार के। एक तो आप बहुत बड़ा डोनेशन दे रहे हो मेरे को 1 घंटे का, यू आर गिविंग योर क्वालिटी ऑफ टाइम, इट इज द बिगेस्ट डोनेशन। You can earn 5,000, 10,000, 50,000 rupees in further time, but you cannot earn this time. इस उम्र का ये 1 घंटा आप चाह के भी नहीं खरीद सकते। You cannot earn this time. Can you earn? Yes. आपकी जो भी आयु होगी और जो भी आयु का दिन होगा आज, उस दिन का 1 घंटा आपने हमें दिया, तो इससे बड़ा डोनेशन तो हो ही नहीं सकता। It is the biggest donation.
दिस अ मटेरियल वर्ड, पैसा देना करना वो तो आदमी आता है एक बार देश कमा लेता है। तो ये आप समझ दे रहे हो, मैं तो आपकी इस रिस्पेक्ट को सबसे बड़ा डोनेशन मानता हूँ मेरा। और आप लोग भी मैंने जो बोला अगर मेरे विचारों से सहमत हो तो अपने अंदर अप्लाई करने की कोशिश करो। अगर आप अप्लाई करेंगे मेरा पूरा विश्वास है कि एक अलग चेतना हम लोग इतने लोग भी ला सकेंगे। आप बताइए कितने लोगों के मन में ऐसा आया कि हम कैद के अंदर जेल में जाकर, वह नरकासुर में कैद थे, यहाँ पर महिला काम क्रोध लोभ ईर्ष्या के कारण पैक थे, उनका चिंतन कितनों को आया? हमको यह आया। क्यों? क्योंकि हमारा इंटेंशन बड़ा क्लियर था, हमारा इंटेंशन सेवा का था। तो जहां आपका इफ योर इंटेंशन इज क्लियर, गॉड ट्राइंग टू हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करने लगता है, भगवान आपके साथ चलने लगता है। क्लियर? आई होप आगे चल के आ जाए रिमेडी, तो नहीं तो आपको रिमेडी की बात नहीं करेंगे, कि पर भी मैं आपको दे दूंगा रिमेडी, ऐसा नहीं है। और एक सबसे बड़ी रिमेडी है तो आपकी है कि आप पति आरोग्य रहे, ये दुआ पत्नी की रहती है। मेरे पति कुछ नहीं होना, है ना? इसके लिए पति क्या करे? पत्नी के जो पैर है नीचे वह प्रेस करे, जैसा कि बासु ने एक्सप्लेन करा है, लव दैट इंसिडेंट। तो आपको कभी जीवन में कोई रोग नहीं होगा, ठीक है? और अगर बाय चांस आपके घर में जो अर्निंग मेंबर है, अगर उसके आप पैर भाएंगे, ये 11th रूम एक्टिव करेंगे आप उसके पेज का, जिस प्रकार नारायण लक्ष्मी जी नारायण के उन पैरों पे हाथ रख के बैठती है। दिस इज द प्लेस ऑफ 11th रूम। रिमेंबर इट, रिमेंबर इट। ऐसा नहीं कि मैं घर में करो, फिर देखो जितना आपका बॉन्डिंग से क्रिएशन होगा उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। 11 रूम 11th रूम रेमेडी हो सकता है आपको लिखना पड़े, लेकिन अभी निकली नहीं है, अभी आएगी। 11 रुपए, 11 रुपए। अगर कोई भी इच्छा अधूरी है आपकी, आप चाह रहे हो कि मेरी कोशिश करने के बाद भी पूरी नहीं हो रही है, तो 11 रुपए, 10 का नोट और 1 का सिक्का नहीं मिले, ये आपका प्रॉब्लम है। यू विल गेट इट, अगर आप चाहेंगे तो मिल जाएंगे। 11 रुपए शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में, शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में, 8 बजे दे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर रात को 8 बजे, देखो थोड़ा डिफिकल्ट है, 8 बजे 11 रुपए आप, या 11 रुपए या 11 काजू बादाम कुछ भी, लेकिन 11 रुपए आपके लिए इजी रहेगा। 11 रुपए अगर 11 शनिवार आप देंगे, मैं आपको लिख के देता हूं, राइटिंग में दे रहा हूं, मैं आई एम रेडी टू राइटिंग, व्हाट इज जो भी इच्छा हो सोच लो। बस 11 शनिवार 8 बजे 11 रुपए, या 11 रुपए को सामान खरीद के किसी को दे दो। 11 रुपए नहीं तो 110 रुपए खरीद लो, 110। If you are comfortable, then go for 11,000 rupees, but don't go for too much. स्मॉल डोनेशन वही होता है कि आप एक सीमित संख्या में दें। 11 रुपए रखो। मेरा बच्चा, पूरा विश्वास, अगर बच्चे की शादी नहीं हो रही, ये आपकी इच्छा है, मेरे बच्चे को बच्चा नहीं हो रहा, ये इच्छा मेरी पत्नी, ये आपका 1001% में लिखित में दे रहा हूँ, ये काम होके रहेगा। अब बताओ मैंने क्या एक्टिवेट करा इसमें? एनीबॉडी कैन हेल्प मी? चलो जय जी स्टार्ट करेंगे। अब हम ये बोले कि मैंने ऐसा बोला भी क्यों आपको? हाँ, आपने 11 नंबर जो गिनती, इट्स एंडिंग विथ 11, राइट? 10 + 1 is 11। आपने 11th नंबर को एक्टिवेट किया, 11th रूम को एक्टिवेट किया, डिजायर्स 11 रूम को। और एनीबॉडी वांट टू एडिट? गीता तो बता देगी, मेरे को मालूम है, मैं नए लोगों से पूछता हूँ ना। एक मिनट अनम्यूट करो बेटा अपने आप। भारती जी अनम्यूट करें। हाँ, आपने 8 बजे का टाइम बोला। हाँ, क्यों बोला? वो 8th रूम को से रिलेटेड, या इससे 11 से 8। 8th इज स्पाउस फैमिली। वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी कि भले कुछ जवाब तो दे रहे सही साठ, इतना अच्छा दे रहा है। दे आर गिविंग द हैप्पी रिस्पांस। वेरी गुड भारती जी, मैं आपको और डिटेल बता रहा हूँ। एनीबॉडी वांट टू एडिट? पूनम जी, अरे मेरी भी आपके द्वारा ही निकलवा के दिखाऊंगा, देखो आप।
हाँ पूनम जी। गुरुजी ये हम शनिवार को दे रहे हैं तो वो बड़ों की शायद ब्लेसिंग्स भी इसमें काउंट हो जाएंगी, या जो काम स्लो हो जाता है तो शायद उसको वो फास्ट कर देगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? ओह माय गॉड। चलो जय जी, एक मौका और आपको, मैं सबसे पूछूंगा रहूंगा मैं, और आप ही जवाब दोगे मेरे को, मुझे मालूम है। We are pleasing Saturn planet गुरुजी शनिवार करके, सैटर्न को हम खुश कर रहे हैं। यस, शनि भगवान राइट, वेरी गुड। अच्छा, व्हाई आई एम प्लीजिंग सैटर्न? दो चीज का जवाब दो। मैंने शनि को क्यों करा और 8 बजे क्यों बोला? कंचन, मुंह पर फेरने का नहीं आता, ऐसा नहीं। अच्छा, अभी आप आए हो, अभी तो समझोगे नहीं। चलो, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, पहले आई थी लेकिन फिर मैं बेटा अभी गीता जी से पूछूं, उसके पहले मैं और को भी कोशिश करना चाहती हूँ। प्रतिभा जी, नहीं मालूम? नहीं, चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, हम जब शुरू में, अच्छा आप बताइए गीता जी, आप हमारे में, फिर बासु जी से पूछेंगे, नहीं तो आप यस। हेलो, हाँ जी। 11th लॉर्ड सैटर्न है, उसको एक्टिवेट किया, और 8 नंबर भी शनि का है, उसको एक्टिवेट किया है, और शनि तो कहता है चैरिटी 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 करो करो करो। देखा, दिस इज द रेमेडी। बट जो भारती जी ने बोला गुरुजी, मतलब सब अपने हाउस से हाउस रिलेट कर पा रहे हैं। हाँ, वही कर, कितनी अच्छी बात है ना बेटा, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपका 8th हाउस, लेकिन 8th रूम, मान रहा हूं मैं इन लॉस फैमिली, लेकिन 8 नंबर सैटर्न का होता है, ये याद रखना। 8 नंबर सैटर्न एंड 11 नंबर सैटर्न किस किस का लॉर्ड है? 10 का और 11 का, यस नो? तो नॉट इन योर कर्ट चार्ट, मे बी पॉसिबल द होल एनर्जी, 11th रूम एनर्जी विद द 11 नंबर कैरी। फर्स्ट रूम एनर्जी मार्स कैरी, सेकंड रूम वीनस, थर्ड रूम जेमिनी। आर यू गेटिंग? मैं बता रहा हूं आपको, पहले वो नंबरों में, अभी हाउस में जो हाउस है, वो हाउसों में उस रूम की एनर्जी रहती है। जैसे पहले रूम में मार्स की एनर्जी, दूसरे रूम में शुक्र की एनर्जी, तीसरे में मर्क्यूरी की, फोर्थ के अंदर मून की, फिफ्थ में सन की। ये क्यों है, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद अलग है कि आपका नंबर कुछ और लिखा, बात अलग है। बट आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट द नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट द रूम। If you say, oh my God, my room number is Guruji 11th में my phone number, should I pay 4 rupees? No. Your phone number is situated in which energy? The energy room is 11 room energy. तो हमेशा याद रखिएगा, आपको उस रूम में एनर्जी किसकी फ्लो होती है? ये फर्स्ट रूम में मार्स की एनर्जी, सेकंड रूम में, क्योंकि मार्स लॉर्ड करता है, इसीलिए 8th रूम को ही मार्स करता है, तो 8th रूम में मार्स की एनर्जी रहेगी, सैटर्न की भी रहेगी। उसको मैं आगे थोड़ा समझाऊंगा, लेकिन जो भी रूम के लॉर्ड हैं, 1 2 12 भाव, वो भावों की अंदर एनर्जी वो रहेगी जो उसके लॉर्ड है। पहला कमरा, 8वां कमरा मार्स की एनर्जी, दूसरा नंबर 7वां नंबर वीनस की एनर्जी, थर्ड नंबर 6 नंबर मर्क्यूरी की एनर्जी, 4 नंबर मून, 5 नंबर सन, 9 नंबर और 12 नंबर जुपिटर, 10 11 सैटर्न। टॉकिंग ओनली रूम नंबर, सॉरी रूम, we are not going on the number, it is a universal। अगर मैं आपका चार्ट देखूंगा सेपरेट, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ये भी करो साथ में, पर ये तो यूनिवर्सल एनर्जी। क्लियर? और पूछो आप। यस जी, सैटर्न के नंबर 8 वो क्या है गुरुजी, वो समझ में नहीं आई। सैटर्न का नंबर, वो न्यूमरोलॉजी का खेल हम आपको बाद में बताएंगे, है ना? इट विल, बिकॉज़ इट टेक द लॉन्ग टाइम। सैटर्न का 8 नंबर होता है, ये आप मान के चले, फिर हम ये न्यूमरोलॉजी वाला सेशन लेंगे तब बताएंगे आपको। सो एवरीबॉडी, यस, आप तो अभी आज स्वागत है आपका कंचन जी, आप आए, बढ़िया, आज बड़ा अच्छा हुआ, सुनना जरूर। आप बोलिए। गुरुजी, मैं अभी ये समझा नहीं, आपने जो 8 का बोला ना, मेरे को थोड़ा ये बता दो नहीं, ना। आपको क्या है, एक उपाय हमने दे दिया है, अच्छी तरह समझा है, इसकी रिकॉर्डिंग आप जरूर सुनना, है ना? ओके, ठीक है, आपको यू विल गेट इट, है ना? ओके। हाँ, ये एक, हम आपको इच्छाओं को, पहली बात तो हमको इच्छाओं को पालना ही नहीं है, दिमाग में फिट ही नहीं करना है, क्योंकि ये चीज ऐसी कभी जिंदगी में पूरी नहीं हो सकती। लग लीजिए आप,
एक इच्छा पूर्ण होगी, दूसरी साथ में लाएगी, दूसरी इच्छा पूर्ण होगी, योर नीड्स कैन बी फुलफिल, योर डिजायर कैन नॉट फुलफिल। तो इसी चीज जो फुलफिल हो ही नहीं सकती, थोड़ा दूर इग्नोरेंस है, जस्ट अवेयर, इच्छा उठ रही है, अरे यार। अब आप देखो, जब आपके ऊपर मीठा खाने की इच्छा हो रही है, अरे मेरे को डायबिटीज है, नहीं खाना, आप करते हो ना ऐसा? नहीं मैं तो फीकी भी, मेरे शरीर खराब हो जाएगा। अरे आप शरीर की चिंता करो, मैं आपके जन्म की बात कर रहा हूं। आपका जन्म सुधर जाएगा, शरीर को डायबिटिक नहीं होगी तो वो तो अलग बात है। मरना तो डायबिटिक नहीं है तो भी है, लेकिन आपको जन्म सुधारना तो ज्यादा जोर मत दो। डोंट गिव द फोकस ऑन योर डिजायर्स, चलने दो जीवन। और मेरा पूरा मानना विश्वास है, ये मैं साक्षात गवाह हूं आपके सामने, एक विकलांग, एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी एलआईसी में काम करने वाला, भगवान को मुझे 10-12 कंट्री घुमानी थी, मैंने कल्पना भी नहीं करी। बल्गेरिया गया पहली बार, मैंने कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं कभी वायुयान में बैठूंगा। भगवान को चार्ट को जो देना है, जहां मार्स की दशा आई मेरी भाग्येश की, वो मैं टाइम चालू हो गया। तो जो आपको जो भी मिलना है वह मिलके रहेगा, ये भगवान का अकाउंट है। जो पीड़ा मिलने वाली है और जो सुख मिलने वाला है, मिलके रहेंगे। तो आप बिल्कुल मुक्त हो जाओ अपने आप को, जो आपकी सांस चला रहा है इस पे पूरा जीवन छोड़ दो और आगे चलो। जो मिलता है चैरिटी के उपाय वगैरह थोड़ा कर लिया, बाकी बी विथ योरसेल्फ along with your botheration and worries. I always say, जीवन क्या है? जीवन वही है कि अपने परेशानियां, तनावों को लेकर किसी और के बारे में चिंतन किसे करें, बस ये लाइफ है। मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरी शादी, बेटी है, सब कुछ ओके यार, ये जरूरी है, नेसेसिटी है, ये नीड है आपकी। वो नीड को आप डिजायर में करो, ये होगी। आज बच्चे की शादी आज नहीं हो रही तो 1 महीने बाद होगी। यस, क्लियर? Okay, shall we go for the little meditation of the desires? ना? Anybody want to ask something? कुछ बोलना चाहेगा कोई? हाँ पूनम जी बोले आप। गुरुजी, ये जो देना है किसी को भी दे सकते हैं या किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को देना है जो दान? आपको देखो, आप अगर बाय चांस आज की तारीख में, तो आप स्पेशली अगर बाय चांस 2 काम करता हूं, अगर बाय चांस आपको अगर रखना है ना, तो किसी नीडी को दें आप, किसी डिसेबल को दें, किसी ओल्ड को दें आप। नीडी मतलब ऐसा नहीं कि अपने को काम छोड़ के अपन नीडी ढूंढने जा रहे हैं, आपको ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। और अगर बाय चांस ऐसा हो गया कि शनिवार जाना ही है मुझको, अगर ऐसा लग गया कि अपनी प्रायोरिटी पहले है, तो वो उनको अलग निकाल के रख दिए, उसको अगले दिन यूज कर लिया। समझे आप? ऐसा कंपल्शन नहीं है, इसको मैं बंधन में नहीं बांधने वाला कि करना ही पड़ेगा, नहीं। आपने करा, आपकी प्रायोरिटी पे लिए। मेरा बच्चा रो रहा है और मैं भाग रही हूँ 11 रुपए डोनेशन करने, दैट इज नॉट गुड। माय चिल्ड्रन इज क्राइंग एंड आई एम गोइंग फॉर द डोनेशन, नो। मेरे पति को कुछ बोल रहा है, मेरी पति को बोल बाद में आऊंगी, तो अभी चुप रहो, नहीं, उस केस में नहीं लगेगा। और ऑटोमेटिकली आपको फ्री टाइम मिल जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और ये करो, और ये जो मैंने बताया आपको, एक बार हो सकता है लगे तो रिकॉर्डिंग वापस सुन लेना। आज अच्छा मुंह से निकला मेरे भी, और मुझे भी अच्छा लगा। आई लव इट, एंड स्पेशली थैंक यू वेरी मच कृष्णन जी फॉर एक्सप्लेनिंग एंड टेक द इनिशिएटिव बाय योर ओन। वी एक्सप्रेस द ओन हॉरोस्कोप, और अपने इंसिडेंट अपने जोड़े। आप सब लोग भी मोस्ट वेलकम है, आप लोग भी अपने अपने इंसिडेंट को ऐसा जोड़े हैं, और उसमें कहीं मदद आती है आप मेरे से बात करें, मैं तैयार हूं आपकी मदद करने को। लेकिन अभी ये पूर्ण हो जाए, दिवाली का टाइम है आप लोगों का, है ना? तो साफ सफाई के अंदर भी आपको लगेगा, साफ सफाई में बिजी होंगे आप। और कल हमारा लास्ट 12th राउंड हमारे जया जी लेंगे, 12th राउंड, एंड आई एम वेरी प्लीज, वेरी हैप्पी कि नए नए लोग आ रहे हैं। गीता जी भी कितनी खुश होती है, बोले गुरु जी आप कैसा कर रहे हो, बासु भी खुश हो रहा भाई। हम ये सब ज्ञान का जब इलोब्रेशन होता है वो सही बात है। और गुरु की इच्छा क्या है बताओ? गुरु की इच्छा है कि कोई शिष्य से हरा है, तभी तो सच्चा गुरु ना। गुरु की सबसे बड़ी इच्छा कि कोई शिष्य से आ रहा है। मैं कोई बोलूं, जय बोले नहीं गुरुजी इसको नहीं ऐसे करो, इन दैट केस आई वोंट टेक ऑन माय ईगो,
I will take, my God. Yes, no. आपका बच्चा आपको दौड़ में हरा ही देता है. You lose your race with your child and you enjoy it. The same apply in the guru element. You also guru element. Yeah? छोटा सा ध्यान करते हैं हम. थोड़ी देर बाद कॉल करें प्लीज, है ना. थोड़ी देर बाद कॉल करें प्लीज. चलिए हाथ रब करना चालू करें. Put up on your first room. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. घुटनों पर दोनों हाथ रख दें. स्पाइन स्ट्रेट. रीढ़ की हड्डी सीधी हो. आंखें बंद. अपने नाम को याद करें. बिकम अवेयर ऑफ योर ओन नेम. Become aware of your own body. अपने शरीर पर अपना ध्यान. अपने घुटनों से नीचे वाले स्थान पर अपना ध्यान. घुटनों से पंजों की तरफ. Become aware of your part of the bodies under your knees. Become aware of your elder siblings, elder sisters. अगर आपके बड़े भाई और बहन हैं, उनका चेहरा याद करें. Become aware of your all botheration and worries.
कोई भी शारीरिक पीड़ा हो, रिश्तों की पीड़ा हो, just surrendered all in the divine energy. इस संयुक्त ऊर्जा में उन्हें समर्पित करें, जो भी आपकी परेशानियां हैं, शारीरिक हो, रिश्तों की Now become aware of your only one desire. कोई भी एक इच्छा अगर आप में है, जो प्राथमिकता है, just think about your one desire. जो ये शरीर, ये जीवन आने वाले समय से मांगता है, मेरे बच्चे खुश रहें शादी के बाद, जो भी, only one desire. मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, मुझे आर्थिक कमी ना हो, कोई भी एक डिजायर आप सोचें. And surrendered in this divine energy. एक और इच्छा सोचें, surrendered in this divine energy. Now think how much desires you want. जो भी चाहते हैं, कौन सी इच्छा को दिमाग में रखना है, इसका फैसला आप पर छोड़ता हूं. Think of your all desires. All surrendered in this divine energy. संयुक्त ऊर्जा में समर्पित करें. आपकी सभी इच्छाएं समर्पित हो चुके हैं. Just bring an attention, they don't want anything. मुझे कुछ नहीं चाहिए. मुझे सिर्फ विश्राम करना है. Relax your body. क्या हो रहा है
आगे क्या होएगा, क्या हो रहा है आगे क्या होएगा, तू वही काटेगा जैसा तू बोएगा, तू कभी हंसेगा तो कभी रोएगा, तू कभी हंसेगा तो कभी रोएगा, आएंगे जिंदगी में उतार चढ़ाव, तेरी मर्जी है रोके या हंस के गुजार, जिंदगी के मिले हैं ये दिन दो चार, तेरी मर्जी है रोके या हंस के गुजार, कि न रख बैर किसी से न रख तू जलन, रखना है तो रख एक चाल चलन, के छोड़ दे पगले ये तेरा बड़ बोलापन, छोड़ दे पगले ये तेरा बड़ बोलापन, आगे की सूधीले बीती को दे बिसार, तेरी मर्जी है रोके या हंस के गुजार, जिंदगी के मिले हैं ये दिन दो चार, तेरी मर्जी है रोके या हंस के गुजार। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने आसपास के वातावरण के प्रति ख्याल रखते हुए अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता मुस्कान के साथ खोल सकते हैं। You can open your eyes slowly and fill a glass of water. पानी का ग्लास भरें and drink the water. Good. I hope we took the too much time today. I am very sorry for that. कल मिलते हैं 8:30 बजे। बस खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें। कोई भी छोटी मोटी चिंता परेशानी को अपने दिमाग में जगह ना दें। Blessings.